Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Okay, how many of you like elephants? The mighty creatures, their trunk, the way they walk, it's amazing, right? But did you know that ये जो elephants थी पहले इनकी trunk ऐसी नहीं थी? So we are going to read a story today about Golu and how he grew a nose. And who's Golu? Golu is our cute little elephant. So guys, we are doing the 5th chapter of our book, An Alien Hand, the supplementary reader of grade 7, and here we begin. Now this particular book, this particular book, it has been written by Rudyard Kipling and it's a simplified and abridged version. So Golu grows a nose basically. It's actually not this short of a chapter, but it's an abridged thing. Abridged का मतलब होता है the story remains the same, the context remains the same, the only thing is the length is shortened. Okay, इसका मतलब होता है abridged. Now let's see the story. But before we read, there was a time when the elephant had no trunk. Okay, now remember that we are reading fiction. Remember that it's a story. Okay, so don't get a lot of logic into this. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. So now Golu, he has a bulgy nose. Okay, so अगर जैसे elephant की जो trunk होती है, actually it's like this, but उसकी trunk इतनी ही थी, यहीं पे खत्म हो जाती थी उसकी trunk. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. So he had a lot of questions. What kind of a question? What kind of questions we will see in the chapter, but here we know that this story is about this little cute elephant and the name is Golu, and he is full of questions and he is so inquisitive, so curious that he goes to the Limpopo River when he doesn't get answer to certain questions. Now let's begin our story. Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose, as big as a boot. So एक शू जितने, एक बूट जितनी बड़ी उसकी एक नोज थी और वो भी बल्जी सी. He could wiggle it from side to side. Wiggle मतलब move it, okay, shake it. So he could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. अभी हम देखते हैं elephant क्या करता है. If it has to eat anything, वो अपनी trunk को use करता है. It picks up things. अगर उसको अपने ऊपर water splash करना होता है तो वो अपनी trunk से करता है. But उस टाइम पे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. So there was this small elephant and his name was Golu. और उसकी भी जो nose थी वो bulgy थी, एक small boot जितनी बड़ी. Right? He had no long trunk. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you fly ever like the other birds? So he asked his tall aunt. Who was the tall aunt? Ostrich. And what did he ask her? He asked that बाकी birds की तरह why don't you fly? Then he asked his tall uncle, the giraffe. तो उसके बाद उन्होंने जो उसके जो tall uncle थे जिराफ, उनसे पूछा what makes your skin so spotty? Which means तुम्हारी body में, तुम्हारी skin में इतने सारे spots क्यों हैं? He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? So उसने hippopotamus से क्या पूछा कि uncle, why are your eyes so red? He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? अब baboon से उसने क्या पूछा? Uncle, tell me, जो melons होते हैं, ये melons जैसे क्यों होते हैं? Right? ये melons जैसे taste क्यों करते हैं? So now the ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. Then Golu is a naughty baby. अब जब भी गोलू कोई क्वेश्चन करता था ये लोग क्या बोलते थे? Oh, गोलू is a naughty baby. He asked such difficult questions. ये तो कितने difficult questions करता है. अब जिराफ को बेचारे को क्यों पता कि उसकी जो बॉडी है उसमें इतने स्पॉट्स क्यों हैं? ऑस्ट्रिच को क्या पता कि वो उड़ क्यों नहीं सकती? बबून को क्या पता कि वो इतना हेयरी क्यों है? या मेलन्स जैसा टेस्ट क्यों करते हैं? यार आप क्वेश्चन करोगे नींबू जैसा टेस्ट क्यों करता है, तो नींबू को क्या पता यार, मतलब कैसे पता होगा? अब वो नींबू है इसलिए वो नींबू जैसा टेस्ट करता है. बट everybody, what did they say? They said that, oh my god, such difficult questions, he is such a naughty boy.
One day, Golu met the Myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her. एक दिन वो मैना से उसने क्वेश्चन किया. क्या क्वेश्चन किया? What does the crocodile have for dinner? So कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है? The Myna said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. सो मैना ने बोला एक काम करो, वो जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है तुम वहाँ पे चले जाओ और तुम खुद पता लगा लो कि क्रोकोडाइल क्या खाता है. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons, which means he is now off for a journey. तो उसने अपनी पैकिंग कर ली. तो पैकिंग में क्या क्या किया? He got 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, फिर उसने अपनी फैमिली को क्या बोला? Goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner. और मैं क्या पता लगाऊंगा कि ये क्रोकोडाइल जो है ये डिनर में खाता क्या है. Now he had never seen a crocodile. अब उसे पता ही नहीं था क्रोकोडाइल दिखता कैसे है, क्योंकि वो तो जंगल में रहता था. उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं था. And didn't know what one looked like. He met a python and asked him. अब बीच में उसको एक पाइथन मिलता है. Python is what? It's a big snake. So उसको एक पाइथन मिलता है और वो पाइथन से क्या पूछता है? Have you ever seen a crocodile? तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? What does he have for dinner? So उसने पाइथन से क्या पूछा? तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? अच्छा वो कैसा दिखता है? अच्छा वो क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. पाइथन जो था वो कॉइल करके, मतलब अपने आप को जो लपेट के वैसे बैठा हुआ था. तो उसने अनकॉइल किया. अनकॉइल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटन फ्रॉम अ कर्ल्ड पोजीशन. मतलब वो अपने आप को उसने खोला, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. सो गोलू ने वापस उसको हेल्प की कि वापस वो कॉइल हो जाए, एंड उसने कुछ आंसर नहीं किया. तो गोलू भी पोलाइटली वहाँ से चला गया. Now गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू सी कि गोलू फाइनली क्रोकोडाइल से मिलता है और उसको पाइथन की हेल्प मिलती है जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एंड गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. बट हाउ डज दिस हैपन? लेट्स सी दैट. गोलू मूव्ड ऑन eating sugar canes, bananas and melons. अब वो मस्त आगे जा रहा था. कहाँ जा रहा था? The big grassy Limpopo river. खाते पीते जा रहा था. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. So after a few days of travel, finally he got to the edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of a river, he saw a log of wood. उसने क्या देखा कि जो बस उसके जो बैंक ऑफ द रिवर थी, मतलब उसके किनारे पे एक लकड़ी का टुकड़ा, लॉग ऑफ वुड जो है वो तैर रहा है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. इट वॉज नॉट सम लकड़ी का टुकड़ा. व्हाट वॉज इट? इट वॉज एक्चुअली अ क्रोकोडाइल. एंड व्हाट डिड ही डू? ही विंग्ड एट हिम. एक्सक्यूज मी, सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? अब उसे तो पता ही नहीं था क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. तो उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन. क्रोकोडाइल ने उसको फिर से आंख मारी और क्या बोला? ही लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड. उसने अपनी टेल निकाली जो मड के अंदर थी. कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल. उसने बोला इधर आओ. एंड देन व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? उसने पूछा तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों करते हो? नाउ ही सेड आई वांट टू नो. सो उसने बोला अच्छा जानना है? कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. और थोड़ा पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. एंड उसने फटाफट क्रोकोडाइल टीयर्स शेड किए टू टेल हिम दैट येस आई वॉज द क्रोकोडाइल. नाउ बेसिकली लाइक ऑनेस्टली क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करना इट्स लाइक एन ईडियम विच मीन्स कि कोई फेक टीयर्स या कोई फेक एक्ट कर रहा है, वो झूठे आंसू बहा रहा है. सो ही एक्चुअली डिड दैट. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड. गोलू को जोर से डर लग गया, लेकिन वो बैठा वहाँ पे और उसने पूछा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था. प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर. तो उसने बोला कि मैं सिर्फ यही पूछने आया हूँ कि तुम डिनर में खाते क्या हो.
Come here little one and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. crocodile ने क्या बोला, वो बहुत कनिंग था, उसने बोला और थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ, बट आई विल विस्पर इट इन योर ईयर्स, मतलब मैं तुम्हें धीरे से कान में बताऊंगा. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल. अब गोलू एकदम पास चला जाता है क्रोकोडाइल के, अपना सर जो है उसके एकदम पास लेके चला जाता है. टू द क्रोकोडाइल स्नाउट. क्रोकोडाइल स्नाउट मतलब द लॉन्ग नोज दैट क्रोकोडाइल हैव, उसके एकदम पास चला जाता है. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. और क्रोकोडाइल क्या करता है, उसकी जो नोज होती है, बल्जी नोज होती है, उसको जोर से पकड़ लेता है. I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. और क्रोकोडाइल क्या बोलता है, oh you know what, आज मुझे लगता है एक छोटा सा एलिफेंट मैं डिनर में खाने वाला हूँ. Let me go, you're hurting me, Mr. Crocodile. वो क्या बोलता है, oh Mr. Crocodile, just leave me, let me go, you are hurting me, मतलब मुझे दर्द हो रहा है. Screamed गोलू. Scream मतलब जोर से चिल्लाया वो. The python who had been quietly following गोलू came to the bank and said. उसने क्या बोला पाइथन ने, वो जब गोलू ने उससे क्वेश्चन किया था, he did not answer, लेकिन वो क्वाइटली गोलू के पास आया एंड देन उसने गोलू को क्या बोला, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. अगर तुम पूरी जितनी जान लगा सकते हो उतनी जान लगा के अपने आप को नहीं खींचोगे तो क्रोकोडाइल तुमको स्ट्रीम में खींच लेगा, which means he will eat you, he will kill you. Golu sat back on his little haunches. Haunches का मतलब a buttock and thigh consider, like this entire part is known as haunches. जो आपके बटक से लेके जो थाई का पार्ट होता है उसे हम haunches कहते हैं. तो उसने अपने पूरे जो haunches थे उसको एकदम फर्म किया एंड पुल किया अपने आप को. Pulled and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail. और crocodile भी pull कर रहा था, तो वो जब कर रहा था तो उसकी जो टेल थी वो विगल कर रही थी, उसकी वजह से जो पानी था वो फ्रोदी हो गया था बहुत ज़्यादा. And he also pulled and pulled. So elephant also pulled and the crocodile also pulled. Then the python coiled himself around Golu's stomach and said. सो पाइथन ने क्या किया, उसको गोलू के स्टमक के अराउंड अपने आप को कॉइल किया. उसने बोला लेट्स पुल टुगेदर, लेट्स पुल हार्डर. गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल. उसने अपने चारों पैर जो थे वो मड में एकदम अच्छे से उसको फर्म कर लिया एंड ही पुल्ड रियली हार्ड. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. उसकी जो बल्जी नोज थी, क्रोकोडाइल जब उसे खींच रहा था तो इट केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, वो लंबी होती गई. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt गोलू. जितना वो पुल कर रहा था उतनी वो लंबी होती जा रही थी एंड उससे गोलू को बहुत पेन हो रहा था. The nose was now 5 feet long. अब वो जो नोज थी वो 5 feet जितनी लंबी हो गई थी. But it was free at last. Finally गोलू won and उसकी नोज फ्री हो गई. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf. उसने अपनी नोज इतनी हर्ट करी थी तो उसने एक बनाना लीफ, बड़ी सी बनाना लीफ को उस पर पूरा रैप कर लिया, मतलब पूरी चारों तरफ से उसको उसमें रख दिया. एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल. और उसके बाद क्रोकोडाइल तो चला गया वहाँ से, तो वहाँ पे उसने अपनी पानी में अपनी जो थी ट्रंक को डाल दिया क्योंकि उसको इतना पेन हो रहा था, तो ही वॉन्टेड इट टू गेट हील्ड. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. उसने क्या किया, 2 दिन तक वेट किया. उसको क्या लगा जब ये पेन कम हो जाएगा तो मेरी नोज वापस श्रिंक हो जाएगी और वापस उतनी सी हो जाएगी. It grew cool but it did not shrink. वो ठंडी तो हो गई, अब उसको पेन नहीं हो रहा था, लेकिन वो वापस छोटी नहीं हुई. At the end of the second day, a fly came and stung गोलू on the shoulder. सेकेंड डे मतलब जब वो पूरा कूल हो गया, उसकी नोज जो उसकी जो ट्रंक थी अब उसमें कोई पेन नहीं था, तो एक फ्लाई आई और उसने गोलू की जो उसके बैग था उस पर उसने स्टिंग किया, मतलब उसको काटा. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. तो उसने उठाया और उसने फटाक से अपनी जहाँ पे वो बैठी थी उसको मारा, फ्लाई वहीं पे मर गई. एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन. पाइथन ने क्या बोला, ये पहला एडवांटेज है. यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. ओके, तो उसने बोला देखो तुम्हारी जो नोज इतनी बड़ी हो गई है, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, अब अगर कोई तुम्हारे पर बैठ रहा है या कुछ है तो तुम उसको हिट कर सकते हो, पहले तुम हिट नहीं कर सकते थे. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. अब उसने कहा चलो कुछ खा लो.
So try and eat a little now. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. अब उसने अपनी बड़ी सी ट्रंक ली और एक बहुत सारे ग्रास को इस तरीके से लिया, तोड़ा, अपने पैर की तरफ उसे झाड़ा एंड ही एट इट. एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन. पाइथन ने बोला एडवांटेज नंबर 2, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. अगर तुम्हारी नोज छोटी होती तो तुम इतने अच्छे से इजीली खा पाते. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ. फिर उसने क्या कहा पाइथन ने, तुम्हें नहीं लगता बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. तो उसने क्या किया, अपनी जो बड़ी सी ट्रंक थी उससे स्कूप किया मतलब थोड़ा सा लिया, क्या लिया उसने, मड, गीली मड, एंड उसको लेके अपने सर पे लगा लिया. Advantage number 3, here's the python. You could not have done it with a small nose. So उसने बोला कि देखा तुम्हारी नोज़ जो है इतनी लंबी हो गई, तो अभी अगर मान लो तुम्हारी नोज़ छोटी सी होती तो तुम कैसे अपने आप को, अपना जो टेम्परेचर है डाउन कर पाते, कैसे अपने आप को इस सन से प्रोटेक्ट कर पाते. तब गोलू ने क्या कहा, थैंक यू मिस्टर पाइथन. Said Golu gratefully, I will remember all this and now I'll go back to my family. उसने क्या बोला, थैंक यू पाइथन, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई, बिकॉज एज ऑफ नाउ ही वॉज फीलिंग बैड कि मेरी नोज को क्या हो गया, वाई हैज़ इट गॉन सो लॉन्ग. बट देन ही सेड थैंक यू, एंड ग्रेटफुली मतलब thankfully. He said thank you and now I would like to go back to my family. So this was our very short story, Golu grows a nose. Right? Now actually this is a fiction, which means it's all imaginary. Elephants obviously had a trunk like since always, right? Now let's look at a quick summary of this chapter so that we understand this chapter in a much better way. The story Golu grows a nose is regarding Golu, a baby elephant that has a bulgy nose. ये एक baby elephant के बारे में है जिसका नाम गोलू है, उसकी एक bulgy nose थी. Golu lived at a time where elephants were without trunks. उस टाइम पे elephant की trunks नहीं होती थी. Furthermore, Golu was a curious elephant and who had a lot of questions. और गोलू कैसा था, वो curious था, उसके पास बहुत सारे questions होते थे. Golu was interested in particular about knowing crocodiles and their eating habits. गोलू सब क्वेश्चन करता था, बट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट क्रोकोडाइल्स और वो डिनर में क्या खाते थे. फाइनली गोलू मीट्स अ क्रोकोडाइल हु आस्क्स गोलू टू कम क्लोज टू द रिवर. फिर गोलू एक क्रोकोडाइल को मिलता है और वो क्रोकोडाइल क्या बोलता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा. The crocodile then takes advantage of the opportunity and catches Golu by the nose. वो उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेता है और गोलू को कैच कर लेता है by the nose. The crocodile then pulls Golu in and tries to eat him. A python tries to help Golu to tell him escape from the crocodile. तो एक पाइथन जो है वो गोलू की हेल्प करता है कि वो कैसे इस क्रोकोडाइल से बच के निकल सकता है. हाउएवर समथिंग रिमार्केबल हैपन्स ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल. कुछ बहुत ही रिमार्केबल, कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होता है. क्या होता है ड्यूरिंग दिस इंटेंस स्ट्रगल, ये जो बहुत ही इंटेंस मतलब एकदम जो उनकी फाइट हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्ट्रगल जो था ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग, द नोज ऑफ गोलू ग्रोज लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग. अल्टीमेटली गोलू कम्स टू रियलाइज, फाइनली उसे क्या रियलाइज होता है, दैट द डेंजर्स ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स, कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. मोर ओवर ही ऑल्सो लर्न्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ लॉन्ग नोज. और उसे एक और चीज़ क्या समझ में आती है कि उसके पास अब ये जो इतनी लंबी नोज है इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं. राइट, सो दैट वॉज अ शॉर्ट समरी अबाउट हाउ गोलू ग्रोज अ नोज. And I hope you got it, because it's a very easy chapter. It's really easy, it's very easy and it's easy to understand. So let's start with our question answers now. I hope we can, right? Let's see how much we understood. So the first question says, whom does Golu ask? Why don't you ever fly like another birds? तो other birds की जैसे fly नहीं करती हो, ये किससे पूछा था उसने? Simple answer, he asked ostrich. Now let's see the second question. Which uncle, okay,
Which uncle of Golu had red eyes? Who had red eyes? Hippopotamus had red eyes. So the answer is hippopotamus. Now next question is, Golu's relatives did not answer his questions because Golu के जितने भी relatives थे, his uncles and his aunts, the ostrich, giraffe, hippopotamus, उन्होंने कोई question का आंसर नहीं किया. क्यों? They were shy? No. The questions were too difficult? Yes. Golu was a naughty baby? No. They were not able to answer the questions. So the answer is the questions were too difficult. Next question is, who advised Golu to go to the Limpopo river? किसने advise किया था? मैना ने advise किया था. The myna bird advised Golu to go to the Limpopo river. Okay, why did Golu go to the river? Golu क्यों गया था river के पास? पानी पीने तो गया नहीं था. So he went to the river because he wanted to know what a crocodile looks like and what he eats for his dinner. Next one is, the crocodile lay on the bank of the Limpopo river. गोलू thought it was, जब वो crocodile को उसने first time देखा तो गोलू को क्या लगा था कि वो क्या है? उसको लगा था it's a log of wood. वो एक wood का piece है. Next question, what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? crocodile ने क्या किया था prove करने के लिए कि वही crocodile है? He shed his crocodile tears. The crocodile shed crocodile tears to show that it was a real crocodile. Oh my God, such simple answers. Now, come here, little one, and I'll whisper the answer to you. The crocodile said this. Crocodile ने क्या बोला? आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा. उसने ऐसा क्यों बोला था? Because he could not stand up. No. He wanted to eat Golu? Yes. He wanted to eat Golu. Who helped Golu on the bank of the river? किसने help की थी गोलू की? Python ने. The python helped Golu on the bank of the river. Name two things the elephant can do with his trunk and two he cannot. अब दो चीज़ें बतानी है जो एलिफेंट अपनी ट्रंक से कर सकता है और दो चीज़ें जो एलिफेंट अपनी ट्रंक से नहीं कर सकता. ये तो कोई भी आंसर लिख सकता है. कौन सी दो चीज़ें? विच ही कैन डू, ही कैन प्लक फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द ट्री विद हिज ट्रंक. वो ट्री से कुछ भी तोड़ सकता है क्योंकि उसकी जो ट्रंक होती है वो इतनी लंबी होती है कि वो एकदम हाई में जो भी होते हैं ट्रीज उनको भी जाके वो प्लक कर सकता है ट्रीज फ्रूट्स और लीव्स. ही कैन कीप अवे द इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स को दूर रख सकता है. अगर आपको पॉइंट्स और लिखने हो तो यू कैन ऑल्सो राइट ही कैन स्प्लैश वाटर. वो अपने आप को बाकी लोगों से प्रोटेक्ट कर सकता है. ही कैन प्ले और व्हाटएवर. Now the two things that he cannot do, he cannot use it as his legs. यार obviously बेचारे की सूंड है, वो अपने पैरों जैसे यूज़ नहीं कर सकता. He cannot see with the help of his trunk. अब वो उससे देख भी नहीं सकता, right? अब वो उससे सुन भी नहीं सकता. So basically you could write anything you want to, right? Simple. पहला क्वेश्चन है गोलू had. What did गोलू have? Relations only with elephants? No trunk? No bulgy nose or no answers. What is the question? What is the answer basically? गोलू के पास क्या था? No trunk. उसकी जो है बड़ी सी सूंड ही बोलते हैं ना, ट्रंक नहीं थी. गोलू's uncles thought him to be. गोलू के अंकल्स को लगता था कि वो कैसा है? सिली है, स्टूपिड है, इंटेलिजेंट है, एकदम फियरलेस है या टिमिड है? आंसर इज इंटेलिजेंट. उनको लगता था गोलू बहुत इंटेलिजेंट है. गोलू वॉज एडवाइज टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. गोलू को किसने कहा था कि तुम लिम्पोपो रिवर जाओ? किसने कहा था उसको? यस, द आंसर इज मैना ने कहा था. When he reached the river, he saw. जब वो रिवर के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? A big log of wood, the crocodile, a python या मैना. जैसे वो वहां पहुंचा था उसने देखा क्रोकोडाइल को. During the fight, गोलू's nose. अब जब उसके और क्रोकोडाइल की फाइट हो रही थी तो गोलू की नोज के साथ क्या हुआ? It was injured. उसको काफी चोट आई. It got flattened. वो दब गई, एकदम पिचक गई. या it kept on stretching. वो लंबी होती ही गई और वो कट गई थी. क्या हुआ था? It kept on stretching. वो लंबी होती गई. The eyes of hippopotamus are always. जो हिप्पोपोटामस की जो आईज होती है वो हमेशा व्हाइट होती है, ब्राउन होती है या रेड होती है? The answer is red. It took 2 days for the nose. So वो जब फाइट ओवर होगी तो गोलू की नोज बहुत पेन कर रही थी. 2 दिन लगे गोलू की नोज को काम डाउन होने में, कूल डाउन होने में. So the answer is to cool.
How many advantages did Python tell to Golu of a long trunk? पाइथन ने गोलू को उसकी लॉन्ग ट्रंक के कितने एडवांटेजेस बताए थे? टोटल 3 एडवांटेजेस. नेक्स्ट है द डिनर ऑफ द क्रोकोडाइल वॉज. क्रोकोडाइल ने क्या सोचा था? आज मेरा डिनर कौन होने वाला है? गोलू या कोई एनिमल, पाइथन या डियर? सो द आंसर इज गोलू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड गोलू आस्क हिज टॉल अंकल. कौन था गोलू का टॉल अंकल? जिराफ. तो उसने उससे क्या क्वेश्चन किया था कि उनकी हाइट कितनी है, या व्हाई वाज ही सो टॉल देन अदर एनिमल्स. वो बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में इतना ज्यादा टॉल क्यों था? व्हाट मेक्स हिज स्किन सो स्पॉटी. उनकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है, या ऑल ऑफ द अबव. सो द क्वेश्चन दैट गोलू आस्क्ड वाज कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है? व्हाट मेक्स हिज स्किन सो स्पॉटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was Golu? गोलू था कौन? A cub, an elephant, a dog or a baby elephant? कौन था गोलू? एक बेबी एलिफेंट था. Who is गोलू's hairy uncle? गोलू के hairy uncle कौन है? गोलू के hairy uncle है baboon, the baboon. Who was गोलू's aunt? अब गोलू की aunt कौन थी? Ostrich. गोलू वॉज कॉट वेन. गोलू को पकड़ा कब क्रोकोडाइल ने? वेन ही वेंट नियर द क्रोकोडाइल. जब वो क्रोकोडाइल के पास गया, जब वो सो रहा था. वेन ही डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज नोज और बोथ 1 and 2. आंसर इज जब वो क्रोकोडाइल के पास गया. हु स्टंग गोलू ऑन हिज शोल्डर्स. गोलू को शोल्डर पे किसने काटा? एक फ्लाई ने, एक वॉस्प ने, एक बी ने. आंसर इज फ्लाई. वन डे गोलू कॉल्ड अ बर्ड नेम. गोलू ने एक बार एक बर्ड को बुलाया. उस बर्ड का नाम क्या था? मैना. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल वाज गोलू? गोलू कैसा एनिमल था? ऑलजी मतलब क्रेजी था, फुलिश था, नॉटी था, या पाइथन जैसा था? आंसर इज वो बहुत नॉटी था. हु सेव्ड गोलू फ्रॉम द क्रोकोडाइल. गोलू को क्रोकोडाइल से किसने सेव किया? ऑस्ट्रिच ने, मंकी ने, पाइथन ने, या बबून ने? पाइथन ने. नेक्स्ट इज द लॉन्ग नोज विल बी यूजफुल टू यू. हु सेड टू होम. ये लाइन किसने किससे कही थी कि द लॉन्ग नोज विल बी यूजफुल टू यू? ये पाइथन ने कही थी एलिफेंट से, गोलू से. द फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स जो एक फ्रेज है, उसका मतलब क्या होता है? फॉल्स सिंपैथी. कोई आपसे जो है एकदम झूठे आंसू बहा रहा है. द आंसर इज फॉल्स सिंपैथी. द क्रोकोडाइल कॉट गोलू बाय हिज. क्रोकोडाइल ने गोलू को कहां से पकड़ लिया था? उसकी नोज से. द आंसर इज नोज. गोलूज बल्जी नोज वॉज एज स्मॉल एज. गोलू की जो बल्जी नोज थी वो कितनी छोटी थी? एक छोटे से बूट जितनी, इतनी सी, एक छोटे से बूट जितनी. When गोलू reached the river bank he saw. जब गोलू रिवर बैंक पे पहुंचा तो उसने क्या देखा? एक पाइथन को, एक लॉग ऑफ वुड, मैना को, या क्या? उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा जो एक्चुअल में क्या था? क्रोकोडाइल था. And that is it. Here we are done with all the questions. So better prepare, okay? बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे पूछ लो. Do not forget to like, share and subscribe, and all these videos are available on our website magnetbrains.com. You only have to select the class. ये होम पेज पे अवेलेबल है. सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, टॉपिक सेलेक्ट करो, and the video will start. Now this is really easy. Once again, thank you for watching this video. I'll see you soon in my next. Take care of yourself. Bye bye.